آپ سب کو سلام میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، لیمب آف گاڈ چرچ کلیسیا کی طرف سے، پی ایم سی چیئرمین پاسٹر جوید اور اس کے گھرانے، اس کی کلیسیا کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آؤ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کا پاک کلام سنیں گے۔ لکھا ہے، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامے پہنے ہوئے دائنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر ایک کم 40 کوڑے اس نے کھائے۔ اس کے ہاتھوں میں کیل لگے، اس کے پاؤں میں کیل لگے، اس کی پیٹھ پر ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کے منہ پہ تماچے مارے گئے، اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کے منہ پہ تھوکا گیا۔ وہ میرے اور آپ کے لیے مارا گیا، کوٹا گیا، ستایا گیا، وہ گھائل کیا گیا، اس کی مبارک پسلی میں بالا چھیدا گیا۔ میرے عزیزو، وہ قبر میں اتر گیا، وہ قبر میں اتر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ پتال میں اتر گیا، اس نے قیدی روحوں کو چھڑا دیا۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ شیطان نے اپنی طرف سے تو یہ سوچا کہ آج یسوع مسیح کی بادشاہی ختم ہو گئی ہے، آج پوری دنیا میں راج کروں گا۔ لیکن اس کو یہ علم نہیں تھا کہ یسوع مسیح نے تو تیرے منصوبوں کو فیل کیا ہے، تیرے خیالوں کو، تیرے ارادوں کو فیل کیا ہے۔ تو نے ان روحوں کو جو خدا کے بندے، ایماندار بندے اور بندیاں تھی، جن کو تو نے پتال کے اندر بند کیا تھا، میرے یسوع نے اپنی قدرت سے، اپنی قدرت، اپنے زور، اپنی حشمت سے اس نے عالم ارواح کی کنجیاں شیطان سے چھین لی۔ میرے عزیزو، آپ مبارک ہو۔ مسیح بہن بھائیو، آپ مبارک ہو، آپ خاص ہو۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح موت پر اور عالم ارواح پر غالب آ چکا ہے۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں یسوع مسیح کے پاس ہیں، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مریم مگدلینی مجھے بہت، وہ خدا کی خادمہ، وہ پہلی مبشرہ جس میں سے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 7 بدروحوں کو خداوند یسوع مسیح نے نکالا، یہ وہ مریم مگدلینی ہے جس نے یسوع مسیح کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے پونچھے اور عطر، قیمتی عطر سے، اور اس کے سر پر ڈالا، اور اس کے پاؤں، یسوع مسیح کے پاؤں اپنے بالوں سے پونچھے۔ یہ مریم مگدلینی کو خداوند یسوع نے بہت بڑا اعزاز دیا، بہت بڑی بلیسنگ اس کو مل گئی۔ اس نے یسوع مسیح کے لیے جو کام کیا ہے، میرے عزیزوں، رہتی دنیا تک، جب تک
ये दुनिया है, ये कलाम है और ये मुनादी चलती रहेगी। जब यीशु मसीह का जिक्र आएगा तो मरियम मगदलीनी का भी जिक्र जरूर सुनेंगे। मेरे अजीजों, आप यीशु मसीह का काम करना शुरू करें। आप मेरे अजीजों मत घबराएं, मैं तो बहुत गुनहगार हूं, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मेरे अजीजों याद करें, डाकू ने यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह तंदुरुस्तों के लिए नहीं, गुनहगारों के लिए, बीमारों के लिए आया है। यीशु मसीह का कलाम हमें यही सुंदर बातें सिखाता है। और ये देखें, मरियम मगदलीनी अपनी बहनों के साथ, वो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी खुशबूदार चीजें उन्होंने मूल ली और वो आई कि हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। मैं इस बात को जब जब पढ़ता हूं, जब जब सुनता हूं, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मेरे अजीजों, आज हम जब मनादी के लिए निकलते हैं, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी हमारे पास चर्च नहीं होता, कभी हमारे पास रुपया पैसा नहीं, गाड़ी नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आप निकलेंगे, आप मनादी करेंगे, आपके लिए आपके रास्ते का पत्थर खुद यीशु मसीह हटा देगा। उसने हमारी मदद के लिए रूह कुदस को भेजा है। रूह कुदस को, वो हमारा मददगार है। आप उठे तो सही, आप गुनहगार हो, आप तौबा करें, आप यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, आप उसके काम में शामिल हो सकते हैं। यीशु मसीह फरमाते हैं, मेरा बाप काम करता है और मैं बाप के साथ काम करता हूं। मेरे अजीजों, आए आप भी काम करें। हम समझते हैं शायद ऑफिस जाना, शायद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना, शायद कोई और दुनिया का काम करना। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जो सबसे, खुदा बाप ने जो सबसे खूबसूरत काम दिया है, खुदा ने मुझे और आपको बनाया अपनी हम्द के लिए, अपनी तमजीद के लिए, अपनी प्रस्तुश के लिए, अपने कलाम के लिए। उसके कलाम को लेकर जाएं, ओ दुनिया के सातों बर्रे आज़म में लेकर जाएं। आज तो बहुत नेट का जमाना है, आप इधर कलाम करेंगे पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आप घर घर जाकर यीशु मसीह की अंजील का पैगाम सुना सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों में जाएं, अपने बहन भाइयों में जाएं। आप देहात में जो दूर गांव में अजीज रिश्तेदार रहते हैं, उनसे पूछें कि भाई जी आपके पास कलाम है, आप कलाम पढ़ते हो, आप दुआ करते हो, आप प्रस्तुश करते हो, आप बाप की तमजीद करते हो, आप खुदा के हुजूर में हदिया देते हो, चंदा देते हो, दह यकी देते हो। आपको दह यकी देना चाहिए, आपको बरकत मिलेगी। आप खुदा का कलाम पढ़ें, आपको बरकत मिलेगी। मेरे अजीजों, ये मरियम मगदलीनी और मरियम और सलोमी वो कहती हैं, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। मेरे अजीजों, बहुत खूबसूरत लिखा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, और यीशु मसीह, मेरे अजीजों, वो निकलकर वो यीशु मसीह मरियम मगदलीनी से बोलता है कि तू जा और उन लोगों को जाकर बता। लिखा है, उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता, उसने उसे देखा, यकीन ना किया। और इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से दो को, जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी, मगर उन्होंने उनका भी यकीन ना किया। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेइत्कादी सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे
देखा था, उन्होंने उनका यकीन ना किया था। उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मेरे अजीजों, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। दुनिया में बेशुमार डिनोमिनेशन है जो बपतिस्मा नहीं देते, जो लोग कलीसियाएं बपतिस्मा नहीं लेते। मेरी आपसे इल्तमास है, आप जरूर बपतिस्मा लें। आप इस पाक कलाम को पढ़ें, आप अंजील को पढ़ें। आपको नहीं समझ आ रही, रूह कुदस से बोले, रूह पाक मुझे गोते वाला बपतिस्मा लेना चाहिए। आपकी रूह कुदस मदद करेगा। यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, और जब उसने बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मेरे अजीजों, जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो आपके लिए भी यही बात है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आप बरकत पा सकते हैं, आप फतह पा सकते हैं। ये ईद क़यामत अल मसीह, मुर्दों में से जी उठने की ईद। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के 11 शागिर्द, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। 12 शागिर्दों ने, उन्होंने घर घर जाकर कलीसियाओं के अंदर, शहरों के अंदर मनादी की। तोमा रसूल, जिसने कहा था कि मुझे यकीन नहीं है, तो वो पाकिस्तान में आया, और सबसे पहले बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मिशनरी आए, गोरे आए, अंग्रेज आए। उनका आना बाइस से बरकत है, बाइस से मुबारक है, खुशी की बात है, अच्छी बात है। लेकिन 2000 साल पहले तोमा रसूल टेक्सला में आया, और फिर मद्रास में जाकर वो शहीद हुए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह कादरे मुतलक 7 बरे आज़म में उसके लोग, उसके पैरोकार हैं। आज हम सुनते हैं कि 3.5 अरब लोग मसीही लोग हैं, लेकिन उनके अंदर भी बाइबल जो सच्चाई है, जो सच्ची बातें हैं, जो कलाम है, कोई किस तरह, कोई किस तरह, लेकिन आपको मुझे इस पाक कलाम को अव्वल दर्जा देना है। जो कलाम कहता है वो करना है। हमें पानी का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। घर घर जाकर अंजील को सुनाना है, और उसकी मनादी को हमने करना है। आए मेरे साथ जरा रोमियो 8 बाब और उसकी 34 और 35 आयत को भी पढ़ेंगे। लिखा है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा, और खुदा की दाहिनी तरफ है, और हमारी शफायत भी करता है। हाँ मेरे अजीजों, मेरा और आपका मददगार यस्सु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो हमारी शिफायत करता है, वो हमारी वकालत करता है। रूह कुदस हमारी दुआओं को उसके पास ले जाता है। यस्सु मसीह, जब कोई जमीन पर तौबा करता है, लाखों करोड़ों फरिश्तगान आसमान पर खुशी मनाते हैं। यस्सु मसीह खुश होता है, पाक रूह कुदस खुश होता है। मुझे मेरे अजीजों, मैं आपके सामने इल्तमास करता हूं कि आप तौबा करें, आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। आपकी कोई बीमारी है, आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई तंगी है, वो यीशु के नाम से जाती रहेगी। देखिए कलाम क्या फरमाता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए हैं। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 20 आयत को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 20 आयत से आप निकालें 15वां बाब, पहला करंथियों 15वां बाब
पहली 20 आयत से लिखा है, लेकिन फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जो सोगन में पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा, और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ है। वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? हम क्यों हर वक्त खतरा में पड़े रहते हैं? ऐ भाइयों, मुझे उस फख्र की कसम जो हमारे खुदा मसीह यीशु में तुम पर है, मैं हर रोज मरता हूं। अगर मैं इंसान की तरह इफसस में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फायदा? अगर मुर्दे ना जलाए जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल ही तो मर ही जाएंगे। फरेब ना खाओ मेरे अजीजों, फरेब ना खाओ। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रासबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। पालूस रसूल की सुंदर तालीम है। जो लोग इस कलाम को पढ़ते हैं वो बरकत पाते हैं। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से खुदा का पाक कलाम आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मेरे अजीजों, ये नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। अब मेरे अजीजों, ये ना कहें कि जी मुकाशफा पढ़ेंगे तो डर लगेगा, विद्रोहें आएंगी। ऐसी कोई बात नहीं। इस किताब को पढ़ने से आपको बरकत मिलेगी, आपको फतह मिलेगी, आपको जोर मिलेगा, आपको नूर मिलेगा। मेरे अजीजों, ये लिखा है 13वीं आयत से, हालेलुया। उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने सोने का सीना बंद सीने पर बंधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी। उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। पास जो बातें तूने देखी और जो हैं, जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। उन सोने के 7 चिरागदानों का वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने बाप के साथ हमारा मिलाप करा दिया। उसने मुर्दों में से जी उठकर और बाप की दाहिनी तरफ बैठकर वो मेरे और आपके लिए शिफायत करता है। हमें, मुझे और आपको दलेर होना है, उसकी मनादी करनी है, उसके कलाम को घर घर जाकर सुनाना है, और सबसे पहले अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज रिश्तेदार, उनको जाकर कलाम सुनाएं, और चलते चलते मनादी करें
یسوع مسیح کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔